Good morning students. This session is for class 8. Students, today we are going to give you solutions of the exercise given in your NCERT book of chapter 7, that is conservation of plant and animals. Okay, so be ready to note down the answers of the questions given in your NCERT book. Okay, so let's start with the first question. First question is fill in the blanks. So you can see here fill in the blanks. There are A, B, C. So let's start with A. You can see a place where animals are protected in their natural habitat is called a. So student, take your pen and copy and try to write the answers by yourself. It will help you to understand the concept. We have already discussed this chapter by using NCERT text and PPT. So I am sure you know answer of these questions. If one or two questions will be difficult, so I will discuss that questions in detail. But here you can try these things by yourself. Okay. So answer of the first, that is fill in the blanks. You can fill here the wildlife sanctuary. Okay, try to write complete wildlife sanctuary. So what is wildlife sanctuary? So let's see. A wildlife sanctuaries are areas where animals are protected in their natural habitat. Activities such as plantation, cultivation, grazing, deforestation, hunting and poaching are strictly prohibited in these areas. So this is about the wildlife sanctuary, and we have already discussed about wildlife sanctuary, then national park, then biosphere reserve. Okay, so you should fill here wildlife sanctuary. Now the B, that is second part, is species found only in a particular area are known as. So you can see here the species found in a particular area are known as. So you can see here the endemic species. Okay, so species which are found in a particular area are known as endemic species. Let's see the answer in detail. Endemic species are plant and animals that exist only one geographic region. Species can be endemic to large or small areas of earth. Some are endemic to particular continent, some to part of continent, and others to single island. Sal, wild mango, bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic species found in पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन में एग्जिस्ट करते हैं. स्पीसीज कैन बी एंडेमिक टू लार्ज और स्मॉल एरिया ऑफ द. तो जो एंडेमिक स्पीसीज हो सकते हैं वो लार्ज एरिया के लिए हो सकते हैं या फिर स्मॉल के लिए हो सकते हैं. कुछ ऐसे हो सकते हैं, यू कैन सी हियर सम आर endemic to particular continent, some to part of continent and other to a single island. तो कुछ किसी कंटिनेंट के लिए एंडेमिक हो सकते हैं, कुछ किसी कंटिनेंट के पार्ट के लिए या फिर किसी आइसलैंड के लिए हो सकते हैं. जैसे कि साल, वाइल्ड मैंगो, बिसॉन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी एंडेमिक स्पीसीज हैं जो कि पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं. अब देखते हैं थर्ड क्या है. तो यहाँ देखिए थर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ. तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस. यहाँ पे क्लाइमेट फील कर देंगे आप. ठीक है, तो फर्स्ट में क्या फिल करना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड में इंडेमिक और थर्ड में क्लाइमेट. अब क्लाइमेट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं.
यहाँ पे बर्ड माइग्रेट टू अदर प्लेसेज टू ले एग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ ईयर. Extreme climatic conditions are difficult to survive. Hence, birds cover long distances to find hospitable environment to lay egg and hatch them. This process is called migration and birds are migratory bird. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बर्ड माइग्रेशन करते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं. माइग्रेशन मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन से बहुत ही दूर दूसरे रीजन तक जाना. क्यों जाना? क्योंकि किसी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज होती हैं तो बर्ड्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो अपने जो सर्वाइवल और जो ले एग्स एंड हैच देम इन सभी के लिए वो बहुत दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट कंडीशन पाने के लिए जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर पाएँ. तो इसी प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं. और ये बर्ड माइग्रेशन करते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फॉलोइंग. फर्स्ट है, देखिए क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. सेकेंड है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थर्ड है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. और डी क्या है, फ्लोरा एंड फाउना. तो देखते हैं. तो फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, किस लिए है, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए उनके नेचुरल हैबिटेट में. बायोस्फीयर रिजर्व देखिए ये क्या है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज कंस्ट्रक्टेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. तो ये बहुत लार्ज एरिया है और ये भी एरिया है बट कंपेरेटिवली लेस होते हैं. और इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मेन फोकस किया जाता है. ठीक है. सेकेंड, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, पोचिंग एंड लीविंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं. ठीक है, कोई यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकता है. बायोस्फीयर रिजर्व में देखते हैं, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग एंड पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. हाउएवर ट्राइबल ग्रुप्स स्टिल एग्जिस्ट इन दीज रिजर्व. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, पोचिंग ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. बट ट्राइबल्स जो होते हैं उनको वहाँ पे रहने दिया जाता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए वो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड लेवल फॉरेस्ट इन इंडिया, ये एक एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का. बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया ये भी है. तो ये इसी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स लिव इन एन आर्टिफिशियल मेड कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होते हैं, मतलब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते हैं. ठीक है.
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखिए एनिमल्स आर कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो ये बेहतर कंडीशंस है एनिमल्स के लिए, ये बेहतर कंडीशंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस में इनको रखा जाता है, यहाँ पे इनके इनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। सेकेंड, ओपन फॉर पब्लिक व्यू, ये पब्लिक के लिए ओपन होता है, यहाँ पे लोग जाके देखते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को। इनएसेसिबल टू पब्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बट यहाँ पे इतना यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे हर जगह जाना अलाउड नहीं होता है, कुछ जगह पे जाना अलाउड हो सकता है। और इसमें जो है कि जो वाइल्ड लाइफ उसको आप हर वक्त नहीं देख सकते हैं, कभी कभी वो वाइल्ड जो भी फॉरेस्ट है उसके अंदर हो सकते हैं, तो जब उनका मन करेगा तभी वो इधर उधर घूमेंगे, अदरवाइज वो रेस्ट में हो सकते हैं। यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के केज में होते हैं, तो यहाँ पे आप उनको कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं। थर्ड वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो देखते हैं इंडेंजर्ड क्या क्या है। एनिमल्स दैट आर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, जो अब एक्सटिंक्शन की ओर हैं उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट में देखिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर नो लॉन्गर लिविंग ऑन द अर्थ, वो स्पीसीज जो अर्थ पे नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ दीज एनिमल्स आर ड्रेस्टिकली रिड्यूसिंग, तो यहाँ पे इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं इनके नंबर लगातार डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज में क्या है, द नंबर ऑफ दीज एनिमल्स इज नील ऑन द अर्थ, इनका नंबर ज़ीरो होता है अर्थ पे, कोई भी एनिमल या अब लिविंग नहीं है इनके जो स्पीसीज है उनका, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट मेक्स स्पीसीज इंडेंजर्ड, तो अगर जो एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को हम लोग कम कर दें, जैसे डिफॉरेस्टेशन में बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड होने लगते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशंस में सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में इनका नंबर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है और ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने लगते हैं। यहाँ पे एक्सटिंक्ट में अगर देखें तो द कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज कैन बी ड्यू टू पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ invasive species such as new predators and food competitors, overhunting and other influences। तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवेसिव स्पीसीज, कुछ नए टाइप के स्पीसीज का इंट्रोडक्शन, और जो बहुत ज़्यादा पोचिंग और हंटिंग होती है इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट हो जाने पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। स्टूडेंट, ट्राई टू राइट डाउन दीज आंसर्स इन योर नोटबुक, ओके। पॉइंट 4 देखते हैं, स्मॉल एनिमल्स आर मोर इंडेंजर्ड देन द लार्ज एनिमल्स, जो छोटे एनिमल हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा डेंजर होता है इंडेंजर्ड होने का। लार्ज एनिमल्स आर मोर एक्सटिंक्ट देन द स्मॉल एनिमल्स, लेकिन जो लार्ज एनिमल है वो एक्सटिंक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टाइगर, वाइल्ड बफेलो, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जबकि अगर एक्सटिंक्ट की बात करें तो डायनासोर, ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ठीक है। डी लास्ट पॉइंट या लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, तो देखते हैं फ्लोरा एंड फाना। तो देखते हैं फ्लोरा क्या है, प्लांट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट को फ्लोरा बोलते हैं। फाना क्या होता है, एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, तो किसी पर्टिकुलर एरिया का जो एनिमल है उसको फाना बोलते हैं। सेकेंड, प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन आर अवॉइडेड टू कंजर्व फ्लोरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड टू कंजर्व एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है
फ्लोरा एंड फाउना से रिलेटेड। Question number 3. Discuss the effect of deforestation on the following. So let's see what are the effect of deforestation on these following. First one is the wild animals. Okay. So students, you can write these effects by yourself in your copy, and then you can match your answer with the answer given on your screen. Okay. So try to do these things. It will help you to revise the concept and to understand the things in more effective manner. The first one is the effect of deforestation on wildlife animals. You can see here, animals living in forest lose their natural habitat due to deforestation. This affects the population or number of animals living in that region. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से उनके पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी नंबर लगातार डिक्रीज होने लगता है, जिससे वो इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन की ओर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ पे। ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड इन्वायरमेंट। तो डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पे हमारे क्या इफेक्ट है, देखते हैं आंसर। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं आप, लगातार हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी से रिलेटेड है ये। थर्ड, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। थर्ड, इम्बैलेंस इन नेचर। फॉरेस्ट की लगातार डिक्रीज होने से नेचर में इम्बैलेंस बढ़ रहा है। रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन रेनफॉल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक इफेक्ट है। सेवेंथ, डिसरप्ट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को भी ये इफेक्ट करता है। तो ये देख रहे हैं, ये सारे ऐसे हार्मफुल इफेक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है, इन्वायरमेंट पे। और आपको पता है ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हैं। चीज़ों को, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और अपने जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी चैप्टर को पढ़ा है उसके बेसिस पे आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट है सी, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है विलेज पे। Deforestation alters the properties of soil. The roots of trees hold the topsoil. Due to deforestation, the nutrients-rich topsoil is more prone to soil erosion, which result in the exposure of flower. Hard, rocky layer. This layer is almost unfertile, turning once fertile land into desert. तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आपके फॉरेस्ट कम होने से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ये सारे इफेक्ट जो है वो कॉन्टीन्यूअस तो दिखते ही हैं, जिनका हर जगह, चाहे वो सिटी हो चाहे विलेज हो, हर जगह इसका इफेक्ट पड़ता है। डिक्रीज इन रेनफॉल, डिसरप्ट इन वाटर साइकिल, पोल्यूशन, ये सभी
चाहे वो विलेज हो, चाहे सिटी हो, चाहे कंट्री हो, सब पे इनका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डी इज इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वन इज मोर प्रोन टू नेचुरल क्लाइमेटीज़। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल क्लाइमेटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो वैसे भी ये रीज़न हर जगह ये प्रॉब्लम है। सिटीज़ में ज़्यादा होती है क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ होते हैं, जिससे ज़्यादा हमारे जो फ्यूल हैं जैसे डीजल, पेट्रोलियम, इसका यूज़ किया जाता है, जिस आफ्टर बर्निंग ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका जो अमाउंट है इन्वायरमेंट में कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है, और जिससे पोल्यूशन का लेवल बढ़ने के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए हाई रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन। यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होने से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो वाटर के साथ चली जाती, फ्लो हो जाता है, उसका बह जाती है, और वो लगातार जो उसकी फर्टेलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, और कुछ ईयर्स के बाद वहाँ पे डिज़र्ट बन जाता है, जिस प्रोसेस को डिज़र्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी रिस्क हर जगह रहता है, चाहे वो सिटी हो या फिर विलेज हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्ट द वाटर साइकिल। तो आप देख सकते हैं ये वाटर साइकिल, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल क्लाइमेटी, इन सभी की ये सभी जो प्रॉब्लम है वो हर जगह, विलेज में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है। सिर्फ ये थोड़ा विलेज में वहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम है तो थोड़ा सा कम होगा वहाँ पे, और जो सिटीज़ है वहाँ पे इनका इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। तो फर्स्ट देखिए आप अपने से भी लिख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन का अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू मैच। आप अपने से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, और कुछ पॉइंट यहाँ से आप ले लीजिए जिससे आपका एक कंप्लीट आंसर बनता है। बट स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर्स हैं, इनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बट हमें इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए, अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है तो उसके बारे में पता करें और वहाँ पे ज़रूर ट्रीज़ लगाएं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर स्टेट, of the new generations. Okay, so try to do these things in practical life also. Okay, so देखते हैं क्या क्या इफेक्ट है अर्थ पे। फर्स्ट वन इज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फॉरेस्ट। सेकेंड पॉइंट इज इम्बैलेंस इन इकोलॉजी। थर्ड पॉइंट इज इम्बैलेंस इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो आप देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे सभी को अभी बता देते हैं डिटेल में, बट आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। जैसे डिक्लाइन ऑफ नंबर ऑफ फॉरेस्ट, तो जो फॉरेस्ट है वो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, इकोलॉजी इम्बैलेंस होती चली जा रही है, मतलब उसका बैलेंस डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में रेशियो है उसका बैलेंस भी ख़राब होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। रिड्यूस्ड रेनफॉल, तो यहाँ पे रेनफॉल में भी कमी आ रही है। डिसरप्ट वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर साइकिल, अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है, जो पोर्टेबल वाटर है ग्राउंड के अंदर होता है, वो भी लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये सभी रीजन्स हैं, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो नेक्स्ट जनरेशन पे डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन अल्टर्स आर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग।
soil erosion, greenhouse effect, droughts, floods and many other global problems। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स अभी या फिर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कंप्लीट जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली इम्बैलेंस होता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस जब इन्वायरमेंट में होगा तो नेचुरल कैलामिटीज़ उसका रिज़ल्ट हो सकता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक रिज़ल्ट है, सॉइल इरोजन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्रॉट, फ्लड्स और अदर ग्लोबल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन जो है इसका एकमात्र जो ऑप्शन है वो है एफॉरेस्टेशन। ट्राई टू प्लांट ट्रीज इन द सेम रेशियो एज वी आर कटिंग। तो इनको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट हालांकि बहुत सारे स्टेप भी लेती है, बट फिर भी अभी बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं हमें, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके और अपने सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको मैनेज किया जा सके। बट अगर सभी एक साथ काम करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। तो अगर हम लोग लगातार ट्री कट करते रहें तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, देन कटिंग डाउन ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन will lead to the following consequences. First one is imbalance in ecology, इकोलॉजी में इम्बैलेंस होगा। सेकेंड, इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करता है। थर्ड, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड डिसरप्ट द वाटर साइकिल। तो आप देख रहे हैं सेम रीजंस हर जगह पे हैं। फोर्थ, increased risk of soil erosion, desertification and natural calamities। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप ट्री को लगातार कट करते चले जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहती हैं। इम्बैलेंस इन इकोलॉजी, इफेक्ट्स, इट इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, डिसरप्ट द वाटर साइकिल, तो ये ग्लोबल वार्मिंग और वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड नेचुरल कैलामिटीज, तो ये सभी हो सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन बी, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। तो अगर आप किसी एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब करें तो क्या होगा, तो देखते हैं आंसर। तो यहाँ देखिए, इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब देन हैबिटेट्स प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर एनिमल्स टू थ्राइव। व्हेन अ हैबिटेट इज डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रॉयड, द resident animal is forced to leave the environment and enter a new habitat. This might end up dangerous to animals, thereby disrupting the biodiversity। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब किसी एनिमल के नेचुरल हैबिटेट को अगर डिस्टर्ब करें तो पहले नेचुरल हैबिटेट से एनिमल्स को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हैबिटेट प्रोवाइड्स, जो हैबिटेट है उससे जो एनिमल्स होते हैं उसको फूड, शेल्टर, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है उनके लाइफ के लिए। ठीक है, जैसे ही ये उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है तो ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं उनको। ठीक है, अब बहुत ही लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, सरवाइव करना उनके लिए किसी न्यू हैबिटेट में इतना इजी नहीं होता है, जिससे लगातार उनका जो नंबर होता है
वो डिक्रीज़ होता चला जाता है और धीरे धीरे वो स्पीसीज़ एंडेमिक और उसके बाद इंडेंजर्ड और उसके बाद एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लगती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडेमिक, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ट्राई टू राइट down all the answers in your notebook because these are the questions given in your NCERT book. Okay, so complete your notes and complete your question answers. It will help you to revise the things. Okay, so thank you for watching this session.